अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफ़ज़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के 7वें लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, हम ये देखना चाहेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। पिछले लेक्चर में हमने कंज्यूमर थ्योरी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने ये कहा था कि कंज्यूमर बिहेवियर के 3 बेसिक डिसीजन और स्टेप्स हैं और उसमें हमने ये कहा था कि सबसे पहला स्टेप है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कि कंज्यूमर जो है हाउ दे प्रेफर वन बंडल ऑफ गुड्स ओवर द अदर बंडल्स ऑफ गुड। वी एनालाइज दैट एंड एनालाइज्ड इट विद रेफरेंस टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द इंडिफरेंस कर्व्स। दूसरे स्टेप में हमने ये कहा था कि कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस एंड ख्वाहिशात के साथ साथ एक और कंस्ट्रेंट कंज्यूमर के साथ रियल लाइफ सिचुएशन में होती है और वो होती है बजट कंस्ट्रेंट की। और तीसरी हमने ये कहा था कीपिंग इन माइंड द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड द बजट कंस्ट्रेंट हाउ द कंज्यूमर दे मेक देयर चॉइसेस। पिछले लेक्चर में जब हमने कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज किया तो हमने कहा कि कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी रिफ्लेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। हमने कुछ अजम्पशंस ली और उस अजम्पशन में हमने ये कहा कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस कंप्लीट हैं, दे मेक रैशनल चॉइसेस, दे कैन रैंक बंडल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उनकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो ट्रांजिटिव हैं, यानी कि वो अगर ए को प्रेफर करते हैं बी पे और बी को प्रेफर करते हैं सी पे तो डेफिनेटली दे विल प्रेफर ए ओवर सी। और उसके बाद हमने ये देखा कि कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर मोर ओवर लेस। इन अजम्पशंस के साथ हमने इंडिफरेंस कर्व ड्रा किए और हमने ये देखा इंडिफरेंस कर्व should always slope downward. They should have a negative slope because in order to get one additional unit of the other good, consumers are supposed to sacrifice some units of the previous good, or the goods on the vertical axis. इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उनमें द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और उसके बाद द सेकेंड decision step of the consumer theory or behavior, that is of the budget constraint. Budget constraint को as such हम study करेंगे and then we'll see that if we are at the original budget constraint, but of course we are living in a changing world and the changes they keep on taking place even on daily, hourly and monthly basis, and we need to incorporate those changes into our consumer behavior analysis. और उन changes को हम देखेंगे if our income they change, whether there is increase in income or whether there is a decrease in income, what will be the impact of that change on the budget line. And then we'll also see what if the prices of the goods they change, that if there is increase in the prices of good 1, what will happen to the budget constraint, and then finally the consumer decision making, and then if the price of the other good changes, what will be the impact on the budget line and ultimately on the consumer choices and the decision. And finally we'll put both of these together, the consumer preferences as well as the budget constraint, and we'll come up with the final consumer choices. और उसके बाद इसी consumer choice and decision को हम explain करेंगे with the help of few examples. तो आज हम शुरू करते हैं with the concept of utility. We would like to define utility, but before we define utility, why there is a need to talk about utility? We said okay, consumers theory and behavior is that consumers they have to make choices, they have to spend their limited money income on goods and services to maximize their well-being. And then we said okay, indifference curve analysis helps us to rank the bundles of goods over the other goods. So if we are looking at a higher indifference curve, if we are looking at the indifference curve which is towards the right from the origin, that gives you a higher level of satisfaction. But in all of this indifference curve analysis, what we were doing was we were not assigning any numerical values to the level of satisfaction or the well-being. लेकिन जब हम देखते हैं कि indifference, higher indifference curve is giving you more utility, so or satisfaction, we are ranking it.
But alternative economists, they also have tried to put certain numerical value on that level of well-being and satisfaction, or that assignment of numerical values to the level of satisfaction and well-being basically is known as the concept of utility. अब जब हम well-being की बात करते हैं, हम कहते हैं if approximately well-being is 25 unit, so that is better than a well-being of 20 units from some other basket. अब इस well-being and utility के concept को elaborate करने के लिए we would definitely like to have some utility function, और उस utility function में हमारे वही दो goods होंगी food and clothing, जो कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के baskets में मौजूद होंगी. इसके लिए utility function क्या है? We would like to look at this slide. इस स्लाइड पे हम अज्यूम करते हैं कि we are having this utility function in two goods. One is food and the other is clothing. And we are using the capital letter F for food and we are using the capital letter C for clothing. And we are defining the utility function for F and C, that is equal to F plus 2C, a numerical expression of your utility function. अब इसी numerical और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल विच इज गिवन इन द लोअर पोर्शन ऑफ दिस स्लाइड. वी हैव टेकन 3 मार्केट बास्केट्स A, B एंड C. बास्केट A के अंदर हमारे पास 8 यूनिट्स ऑफ फूड हैं और 3 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है. देयरफॉर जो हमारे पास ऊपर यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है, अगर हम इसको यूज करते हुए यूटिलिटी कैलकुलेट करना चाहें अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द यूटिलिटी, दैट विल बी इक्वल टू, अब हमारे पास F 8 है तो वी विल हैव 8 प्लस 2 टाइम्स C कितना है? C इज 3. सो वी हैव 8 प्लस 2 टाइम्स 3 विच इज इक्वल टू 14. दैट इज अकॉर्डिंग टू द गिवन यूटिलिटी फंक्शन. B बास्केट में हमारे पास 6 यूनिट्स ऑफ फूड है एंड 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है. Therefore, using the same utility function, we will come up with the numerical value of utility as 6 plus 2 times 4, which is 14. Then finally, in bundle C, we have 4 units of food and we have 4 units of clothing. Therefore, using the utility function of F plus 2C, we come up with a value of 12, and that is 4 plus 2 times 4 is equal to 12. अब इन यूटिलिटी वैल्यूज को देखते हुए अगर हमने इन बास्केट्स ऑफ बंडल्स और बंडल्स के बारे में कुछ कहना चाहे तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे सिंस इन द मार्केट बास्केट ऑफ A and B, our utility value is 14 in both of these bundles A as well as B. Though in bundle A we have more food and less clothing, and in bundle B we have less food and more clothing. Although the combination is different, but the utility level with the help of this explained utility function remains constant, and that is 14. But when we come to the last basket, and that is C, and that C has 4 units of food and 4 units of clothing, which means a utility level of 12. Therefore, if the consumer has to choose, and if we try to look at the consumer preferences, what we will come up with is that the consumer should prefer basket A and B to basket C, but the consumer will be indifferent to both bundle A as well as B. अब इसी चीज़ को हम एक ग्राफ की शक्ल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब इस ग्राफ को देखेंगे इस स्लाइड के ऊपर. अब इसमें हमने यूटिलिटी फंक्शंस एज वेल एज द इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्ट किए हैं. इसमें we are assuming a separate utility function, and that utility function is given on the upper portion of our slide. That utility function is U is equal to F into C. That our utility is a multiplicative function of food and clothing. Again we are taking food on our horizontal axis and we are taking clothing on our vertical axis. If you look at the lower part or the lowest indifference curve, which is U1, we have 3 points on U1. At point C, we have 10 units of clothing and we have
2.5 units of food. If we try to calculate the utility at point C using the utility function of f into c, so we have 2.5 into 10, we have a utility level of 25. Then at point A, we have 5 units of clothing and we have 5 units of food. We use the same utility function of f into c, so we come up with the value of 25 again, which is 5 into 5. At point B, which again is lying on the same indifference curve u1, we have 2.5 units of clothing and we have 10 units of food. Using the utility function of f into c, we come up with 10 into 2.5, which is again 25. So, what we have seen is, using that utility function, all the utility values are same, and therefore, all of these baskets, they are lying on the same indifference curve, and that is u1. Therefore, consumer will be indifferent between selecting choice C, A or B. But if we look at the higher indifference curves, using the same function, we are coming up with a utility value of 50 along with the curve u2 and a utility value of 100 along the curve u3. So, the higher indifference curves u2 and u3, they are representing higher level of satisfaction and well-being. If we look at it from overall perspective, we have an indifference map with different utility values, u1 with 25, u2 with 50 and u3 which is equal to 100. So, this analysis is parallel to our previous analysis, where we simply said that higher indifference curve gave you a high level of satisfaction, but here what we have done is that we have defined it in terms of number of units. Now, this gives us a clue to talk about different types of utilities. When we talk about utility, we say it's a level of satisfaction or well-being. Then we see there can be two types of utilities. One is the ordinal utility and the other is the cardinal utility. In ordinal utility, what we have done is we have taken help from the market baskets and the indifference curves, and then we said ordinal utility along one indifference curve is the same, and we can rank them, and the higher indifference curves, they give us the higher level of satisfaction. When we come to the cardinal utility, what do we see there? There we have assigned numerical values to the level of well-being and satisfaction. In order to come up with those numerical values, what we have done is we have taken a utility function and then we have plugged in the values of the food and clothing in terms of units, and we do have a level of satisfaction. And we said whenever our level of satisfaction in terms of numerical values or the cardinal utility A high, the consumer well-being or the consumer satisfaction will be high. Therefore, along a higher indifference curve, the level of cardinal utility is also high. Now, our ordinal utility is a measure where we are ranking the baskets, where we are saying whether this basket is preferred over that basket or that basket is preferred over another third basket. And we are again talking about the consumer preferences. But when we are coming to the cardinal utility, what are we doing? We are assigning values, numerical scores are assigned, therefore, it becomes a bit easier to rank the bundles and come up with the level of satisfaction and well-being. But of course, when we are looking at both ordinal and cardinal utilities, we are doing the same thing. We are looking at the consumer preferences, and the preferences, they reflect the same pattern, and the same pattern is that either using the ordinal utility or the cardinal utility, we are looking at the consumer choice as whenever they are offered higher of both the goods, they will prefer that bundle over the other bundle where both the goods are in lesser quantities. Now, using the help of the cardinal utility and the utility function, although
we come up with the numerical values, but that numerical value is not that important in analysis of the consumer preferences. What is important is that we need to look at whether consumers they prefer this good over the other or the third one over the second one. Therefore, in our analysis and in most of the economic analysis, what the economists do is they focus on the ordinal utilities because there are certain problems in the measurement of the utility and assigning the numerical value or the cardinal utility concept. This completes the concept of utility, and in this our analysis we will focus on the ordinal utility and will get help from the indifference curves. Our next topic is, but before we move on to the next topic, let me explain what we have done so far. आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की बात, और उन प्रेफरेंसेस को हमने कहा देयर इज अनदर वे, एंड दैट वे इज कि उन प्रेफरेंसेस या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या वेलबींग को हम मेजर कर सकते हैं विद द कांसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। लेकिन फाइनली हमने कहा कि हमारे इस एनालिसिस में वही ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट भी यूजफुल हो सकता है, एंड वी विल स्टिक टू दैट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब हम आज के दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट। व्हाट बेसिकली इज अ बजट कंस्ट्रेंट? हमने शुरू में भी कहा था कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं हैं। व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड एट द सेम टाइम जो भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी प्राइसेस भी मौजूद होती हैं। तो जब हमने फैसला करना होता है, अगर हम देखें अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी, वी लुक एट टू थिंग्स, एंड दैट इज कि हमारे पास इनकम कितनी है, टोटल बजट कितना है जो हमने स्पेंड करना है मार्केट प्लेस में जाने के बाद, और मार्केट प्लेस में जो कमोडिटीज, जो प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके क्या प्राइस लेवल्स हैं। ये दोनों चीजें मिलके हमें एक बजट कंस्ट्रेंट देते हैं। बजट कंस्ट्रेंट बेसिकली गिव्स अस a situation in which consumers they have to make their choices keeping in mind that the limited income they have and the prices of goods and services available in the marketplace. Now the budget line gives us combination of two goods A and good B, or in our example we continue with the example of food and clothing. It gives us the combination of food and clothing and remaining within the limited or the budgeted resources. These combinations of course are reflected in the budget line, and before we go to the detail of how we draw the budget line, we need to explain certain terminology, and then we will come up with the equation of the budget line, और उसके बाद हम budget line को define करेंगे। अब budget line की equation से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। वो कॉन्सेप्ट हमने इस स्लाइड पे देखने हैं। स्लाइड को देखेंगे। अब इस बजट लाइन के लिए हमने वही दो आइटम्स लिए हैं, एक है फूड और दूसरा है क्लोथिंग। Therefore, let F equal the amount of food purchased and C is the amount of clothing. Price of food is given as PF and the price of clothing is reflected as P of C. जब हम लेते हैं PF into F, दैट मीन्स कि फूड की प्राइस क्या है और फूड की हमने क्वांटिटी कितनी परचेज की है, तो ये दोनों चीजें मिलके हमें देती हैं कि अमाउंट ऑफ द बजटेड इनकम विच वी हैव स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ फूड। और जब हम प्राइस ऑफ क्लोथिंग को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट्स ऑफ द क्लोथिंग परचेज, तो हमारे पास क्या आता है कि टोटल स्पेंडिंग जो हमने की है ऑन द परचेज ऑफ clothing. Of course, along a budget line, our total spending on food and clothing should always be equal to our budgeted income. अब इसी बजट लाइन को हम जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो we have PF into F, that is spending on the food, plus PC into C, that is spending on the clothing, and that is equal to capital letter I, which represents our income. So what we are saying that the total income what was available to us, we have spent it either on the food or on the consumption.
अब इस एनालिसिस में हमने एक अजम्पशन ली है और वो अजम्पशन ये है कि हमारे पास जितनी इनकम है दैट इज अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग ओनली ऑन दीज 2 आइटम्स। इसमें हमने वो वाली अजम्पशन एक्सक्लूड कर दी है कि अगर हमारी जो इनकम है कि हम उसका कुछ पोर्शन सेव करें फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जितनी इनकम है दैट विल बी स्पेंड ईदर ऑन फूड और ऑन क्लोथिंग। Therefore, the total amount spent on food and clothing should always be equal to the total budgeted income available for spending. अब एक एग्जाम्पल के साथ हम इस कॉन्सेप्ट ऑफ द बजट लाइन को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे और उसके लिए हम इस टेबल को देखना चाहेंगे जो कि स्लाइड पे है। इस टेबल में हमारे पास मार्केट बास्केट्स हैं A, B, D, E and G। 5 मार्केट बास्केट्स दी गई हैं कॉलम 1 में। कॉलम 2 में हमारे पास फूड की प्राइस है, दैट इज प्राइस ऑफ फूड इज इक्वल टू $1 और फूड की क्वांटिटीज दी गई हैं। कॉलम 3 में क्लोथिंग की क्वांटिटी दी गई है और प्राइस ऑफ क्लोथिंग इज गिवन एज $2 पर यूनिट। आखिरी कॉलम में हमारे पास टोटल स्पेंडिंग है एंड डेफिनेटली हमारी जो टोटल स्पेंडिंग है दैट इज स्पेंडिंग ऑन फूड प्लस स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू आवर टोटल इनकम। अब हम एज्यूम कर रहे हैं इस वक्त कि हमारे पास टोटल जो अवेलेबल इनकम फॉर स्पेंडिंग है दैट इज $80 एंड वी कैन स्पेंड दोज $80 ईदर ऑन फूड और ऑन क्लोथिंग। एंड हाउ कैन वी डू इट? अगर हम मार्केट बास्केट ए को देखते हैं तो इसमें हम फूड का कोई आइटम नहीं ले रहे, जीरो, एंड ऑल वी आर डूइंग इज वी आर स्पेंडिंग ऑल द $80 ऑन द परचेज ऑफ क्लोथिंग। 40 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग इनटू $2 प्राइस पर यूनिट गिव्स यू टोटल स्पेंडिंग विच इज $80 एंड दैट इज इक्वलेंट टू आवर बजटेड इनकम। चॉइस और बास्केट बी में हमारे पास 20 यूनिट्स ऑफ फूड है, प्राइस पर यूनिट इज 1 विच इज $20 स्पेंड ऑन फूड and 30 units of clothing into price which is $60 spent on clothing and the total budgeted income $80 is spent on both food and clothing together. Choice D पे जब हम आते हैं तो we have increased the consumption of food and that has gone up to 40 units और 40 units into $1 per unit is $40 plus clothing के 20 units into the price of 2 gives us another $40 and the total amount spent is $80. Then we come to E, there we have $60 spent on 60 units of food and then $20 spent on 10 units of clothing and the total spending is $80 which is equal to budgeted income. Then we have the G where we have spent all our money on the purchase of 80 units of food item, therefore the $80 spent on food and no spending on the clothing gives us the budgeted income of $80. अब हम इसी टेबल की मदद से और इन्हीं बास्केट के साथ हम जो है बजट लाइन को ड्रा करना चाहेंगे। जो बजट लाइन हम ड्रा कर रहे हैं उसको हम इस ग्राफ में देखते हैं। स्लाइड पे जो ग्राफ हमें दिया गया है उसमें हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फूड लिया है और उसमें हमने वर्टिकल एक्सिस के ऊपर क्लोथिंग ली है। अब क्लोथिंग की प्राइस है $2 पर यूनिट एंड फूड की प्राइस है $1 पर यूनिट एंड आवर टोटल बजटेड इनकम अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग इज इक्वल टू $80। अब हमारी बजट लाइन जो है दैट इज इक्वल टू F प्लस 2C दैट इज $80। अब इस बजट लाइन को अगर हम देखें दैट इज a straight line but the slope is constant. Of course straight line always has a constant slope. लेकिन जब हम देखते हैं y एक्सिस पे तो हमारे पास y एक्सिस पे क्या है और how did we get the y intercept in other words? y एक्सिस पे हमारे पास क्लोथिंग है और क्लोथिंग के हमने कहा है कि मैक्सिमम यूनिट्स जो हैं वो दे आर 40। अब ये हमने किस तरह लिए, हमारे पास टोटल बजटेड इनकम जो थी दैट वाज $80 और हमने कहा कि प्राइस ऑफ क्लोथिंग इज 20। तो y इंटरसेप्ट पे हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास x एक्सिस के वेरिएबल की वैल्यू जो है दैट इज 0, मीनिंग देयर बाय कि हम
फूड बिल्कुल नहीं खरीदते और हम अपनी सारी की सारी इनकम जो है वो क्लोथिंग पे स्पेंड कर देते हैं। अगर हम ऐसा करें तो $80 डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ क्लोथिंग गिव्स अस द y इंटरसेप्ट, that is I divided by price of clothing is equal to 80 divided by 2 is equal to 40. So this is how we got the y intercept. Now let's look at the value on the x intercept where we have taken the food item. Now food के ऊपर again x intercept says whenever the value of the y variable is 0, what is the maximum amount we can have here on our x intercept. अब अगर हम सारी की सारी इनकम विच इज $80 स्पेंड कर दें फूड की परचेज के ऊपर, तो व्हाट वी कैन हैव, 80 इज द बजटेड इनकम, सो इनकम डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ फूड विच इज 1, सो वी हैव $80 डिवाइडेड बाय 1, वी हैव द एक्स इंटरसेप्ट विच इज $80. नाउ व्हेन वी कंबाइन दीज टू इंटरसेप्ट्स, 40 on the y axis and 80 on the x axis, we get the budget line. जो हमारे दूसरे मार्केट बास्केट्स हैं B, D and E, they are also lying on the budget constraint. Reason being कि हमने पिछले टेबल में कैलकुलेट किया था कि इन सारे बास्केट की टोटल स्पेंडिंग इज इक्वल टू $80. अब हम आते हैं स्लोप ऑफ द बजट लाइन. As usual, normal slope for any graph is that you take the change in y divided by change in x. अब हमारे केस में we have taken clothing on the y-axis and we have taken food on the x-axis. So the slope logically will be equal to change in C over change in F. अब अगर हम देखें as an example कि अगर हम move कर रहे हैं from point B to D, from point B to D what are we doing? B के ऊपर हमारे पास 30 units of clothing है और हमारे पास 20 units of food है. जब हम D पे आते हैं तो हमारे पास 20 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग रह जाते हैं और 40 यूनिट्स ऑफ फूड हो जाते हैं. Therefore, आपका चेंज इन C is 30 minus 20 which is 10 और चेंज इन F is 40 minus 20 which is 20. So change in C divided by change in F is equal to 1 over 2, that is 10 over 20 is equivalent to 1 over 2. अब इसी चीज को हम प्राइसेस की शेप में भी दे सकते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ फूड टू द प्राइस ऑफ क्लोथिंग विच इज 1 over 2. प्राइस ऑफ फूड इज 1 एंड द प्राइस ऑफ क्लोथिंग इज 2. सो टू सम अप, हम जो है बजट लाइन के स्लोप को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन F और इक्विवेलेंटली प्राइस ऑफ F डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ क्लोथिंग. नाउ the budget line, does it remain constant for all times to come? The answer is no. We do experience changes in both the variables. One is the prices of the goods and the other is the income level. So what we will see here is, we'll see that if there are certain changes which take place either in the income or in the prices of the goods, what will be the impact on the budget line. Let's look at these changes here one by one. We start with the change in income. जब हम change in income की बात करते हैं तो what do we assume? We can assume and that it normally happens in our lives. हम ये देखते हैं कि हमारी इनकम अगर एक वीक में ये थी कि हम $80 स्पेंड करना चाह रहे थे फूड एंड क्लोथिंग पे, वो हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं है. There are every chances and every likelihood that this income may increase or decrease for next week or the week after. अब अगर हम ये देखना चाहें कि ये बजट लाइन जो हमने सर्टेन अजम्पशन के साथ ड्रा की थी और हमारी अजम्पशंस ये थी कि हमारी टोटल इनकम जो है वो 80 है, फूड की प्राइस $1 पर यूनिट है और क्लोथिंग की प्राइस $2 पर यूनिट है, तो हमारे पास क्या अवेलेबल कॉम्बिनेशंस हैं फॉर द परचेज ऑफ फूड एंड क्लोथिंग विद दिस लिमिटेड इनकम ऑफ 80. अब मजीद आगे चलते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट्स अज्यूम कि देयर इज इंक्रीज इन इनकम, हमारी इनकम $80 से बढ़ जाती है, तो फिर क्या होगा? लॉजिकली स्पीकिंग आपकी प्राइसेस में चेंज नहीं आई. लेट्स अज्यूम कि प्राइसेस आर रिमेनिंग कांस्टेंट.
अगर हमारी प्राइस में कोई चेंज नहीं आई तो इंक्रीज इन इनकम इज गोइंग टू शिफ्ट योर बजट लाइन टुवर्ड्स राइट। जैसे हमने पहले कहा था, सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट में भी हमने बात की थी कि जब भी हमने इनकम या किसी और चीज की वजह से किसी भी कर्व को शिफ्ट करना है तो इंक्रीज इज ऑलवेज अ राइटवर्ड शिफ्ट एंड डिक्रीज इज ऑलवेज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब हम जब इसी बजट लाइन को देखते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने से क्या होगा? इनकम इज अ नॉन प्राइस वेरिएबल, देयरफॉर इनकम बढ़ने से हमारी बजट लाइन शिफ्ट करेगी पैरेलल टू द ओल्ड बजट लाइन। इंक्रीज के साथ दिस शिफ्ट विल बी आउटवर्ड। अब हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख सकते हैं, दूसरे एंगल से, कि किसी वजह से हमारी इनकम जो है वो कम हो गई है। इनकम कम हो गई है तो उसमें हमारी बजट लाइन किस तरह रिफ्लेक्ट होगी? अगर हम ये अज्यूम करें कि आपकी प्राइसेस ऑफ फूड एंड क्लोथिंग दे आर कांस्टेंट, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आई है, तो इनकम के कम होने की वजह से आपकी बजट लाइन शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट और इनवर्ड। अब इन्हीं दोनों सिचुएशंस को हम ग्राफ की मदद से देख सकते हैं। हम शुरू करेंगे इंक्रीज इन इनकम, जो कि इस ग्राफ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ग्राफ के लिए स्लाइड को रेफर करते हैं। इस ग्राफ में हमारे पास जो आइटम हमने लिया है एक्स एक्सिस पे वो है फूड, और जो आइटम हमने क्लोथिंग का लिया है वो वाई एक्सिस पे है। हमारी ओरिजिनल बजट लाइन इज द मिडल लाइन, जिसमें हमारे पास 40 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है एंड 80 यूनिट्स ऑफ फूड है। दैट इज आवर ओरिजिनल बजट लाइन। पहला सिनेरियो जो हमने अभी डिस्कस किया है उसमें हमने ये कहा कि हमारी बजट इनकम बढ़ने की वजह से बजट लाइन पे क्या इफेक्ट होगा। हमने कहा कि अगर हमारी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आती तो हमारी बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। इसी की देखा है हमने कि हमारी प्राइसेस ऑफ फूड रिमेनिंग सेम एंड द प्राइसेस ऑफ क्लोथिंग रिमेनिंग सेम, व्हाट हैज हैपेंड? व्हाट हैज हैपेंड इज कि आपके पहले थी आपकी $80 इनकम, अब अगर आपकी इनकम डबल होके $160 हो गई है। जब इनकम $160 हो गई है तो आप जब उसको फूड पे स्पेंड करेंगे सारी की सारी इनकम को, तो y एक्सिस पे आपके पास आ जाएगा 160 इनकम डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ क्लोथिंग विच इज 2, तो y एक्सिस पे दैट इज इक्वल टू 80। तो y इंटरसेप्ट नई इनकम के साथ इज 80। आपका x इंटरसेप्ट विद न्यू इनकम क्या होगा? वो यही होगा कि आपकी न्यू इनकम इज 160 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फूड विच इज 1, सो दैट x इंटरसेप्ट नाउ इज 160। सो इफ वी कंपेयर दिस न्यू बजट, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास नई बजट लाइन है, पासिंग थ्रू 80 एंड टचिंग 160 ऑन द x एक्सिस। इस बजट लाइन को जब हम कंपेयर करते हैं ओरिजिनल बजट लाइन के साथ, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट इन आवर बजट लाइन। दूसरा सिनेरियो जो अभी हमने देखा था और हमने ये कहा था कि हमारी इनकम अगर कम हो जाती है, इनकम के कम होने से क्या होता है कि लेट्स अज्यूम कि हमारी इनकम हैज बीन कट इनटू हाफ, यानी 80 की बजाय अगर 40 हो गई है, तो उसके साथ क्या होगा कि y इंटरसेप्ट पे आपका 40 which is the new income divided by the price of clothing which is 2 gives you the y intercepts as 20 units of clothing. X axis पे हमारी income has been cut into half. $40 are available to spend on food. If we spend all these $40 on the purchase of food, तो हम क्या करेंगे? 40 divided by the price of food which is $1 gives us 40 units of food. अब अगर हम y intercept and x intercept को connect कर दें, that gives us a lower level of budget line, and that lower level of budget line when we compare it with the original or the middle level budget line is representing an inward shift due to a decrease in the income level. अब अगर हम इसको सम अप करें तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है और प्राइसेस नहीं चेंज होती तो आपकी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, बढ़ जाएगी, पैरेलल शिफ्ट टू द ओल्ड बजट लाइन। जबकि अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो आपकी बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट।
अब इस एनालिसिस के बाद हम एक दूसरे फैक्टर को कंसीडर करते हैं और वो दूसरा फैक्टर है कि अब हम अज्यूम करेंगे कि इनकम में कोई चेंज नहीं आई और एनालिसिस हम करना चाह रहे हैं प्राइसेस ऑफ द गुड्स। सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक प्राइस को चेंज करेंगे और दूसरे प्राइसेस को कांस्टेंट रखेंगे, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द बजट लाइन। अब हम इसमें शुरू कर रहे हैं। सपोज वी आर अज्यूमिंग कि प्राइस ऑफ फूड इज चेंजिंग, तो क्या होगा आपका डेफिनेटली जब प्राइस ऑफ फूड इज चेंजिंग और लुकिंग एट द प्रीवियस बजट लाइन, तो होगा क्या, आपके y इंटरसेप्ट पे कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि आपका y इंटरसेप्ट इज I विच इज इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ क्लोथिंग। और हमने अज्यूम कर लिया है कि ना ही इनकम में कोई चेंज आ रही है ना ही प्राइस ऑफ क्लोथिंग में कोई चेंज आ रही है, इसलिए आपका y इंटरसेप्ट विल रिमेन द सेम। अब जब हम x इंटरसेप्ट की तरफ आते हैं, हमने अज्यूम किया है कि इनकम में भी कोई चेंज नहीं आई, चेंज हैज टेकन प्लेस इन द प्राइस ऑफ फूड। तो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फूड। अब प्राइस ऑफ फूड के चेंज होने के साथ आपकी बजट लाइन रोटेट करेगी इनवर्ड और आउटवर्ड डिपेंडिंग ऑन के प्राइस ऑफ फूड बढ़ी है या कि प्राइस ऑफ फूड कम हो गई है। और इस तरह हमारी बजट लाइन जो है वो एक ओरिजिन से पिवट करेगी वो एक्स एक्सिस से एंड इट विल शिफ्ट आउटवर्ड ऑन योर एक्स एक्सिस पे आपकी शिफ्ट करेगी आउटवर्ड, वाई एक्सिस पे पिवट होगी वो आपकी बजट लाइन। अब दूसरे सिनेरियो में जब हम ये देखते हैं कि आपकी प्राइस ऑफ फूड जो है अब जब चेंज है, अगर इंक्रीज है प्राइस में तो वो इनवर्ड पिवट करेगी और अगर डिक्रीज है प्राइस ऑफ फूड में तो आउटवर्ड पिवट करेगी। इसी टेंडेंसी को हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ, और ये ग्राफ हमने एक्सप्लेन किया है ऑन दिस स्लाइड। तो स्लाइड को रेफर करते हैं। स्लाइड पे हमने अगेन वही ली है ओरिजिनल बजट लाइन, और उस ओरिजिनल बजट लाइन के y इंटरसेप्ट पे आपके पास 40 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग है और x इंटरसेप्ट पे 80 यूनिट्स ऑफ फूड है। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि आपकी इनकम बजटेड इनकम $80 है, आपकी प्राइस ऑफ क्लोथिंग $2 पर यूनिट है और प्राइस ऑफ फूड जो है $1 पर यूनिट है। तो देयरफॉर आपकी मिडिल लाइन विच इज L1 इज द ओरिजिनल बजट लाइन। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी प्राइस ऑफ फूड जो है वो डिक्रीज कर गई है, $1 पर यूनिट की बजाय $0.5 पर यूनिट हो गई है, तो आपकी बजट लाइन को क्या होगा। एज आई ऑलरेडी सेड कि y इंटरसेप्ट पे आपके पास I डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ क्लोथिंग है, देयरफॉर there is no change in I and there is no change in price of clothing. Therefore, आपका y intercept remains the same as 40. लेकिन x intercept पे I divided by price of food, तो हमारे पास income 80 divided by जो नई price है we are assuming 50 cents per unit. तो हमारा 80 divided by 0.5 gives us 160 units. तो L2 जो नई बजट लाइन है touching 40 on the y-axis and hitting 160 on the x-axis is our new budget line. इस नई बजट लाइन में हमने क्या देखा, it has pivoting out on x-axis from the origin on your y-axis. दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, और ये हमारी L2 है, बजट लाइन जो है L2 है, is the new budget line with the decreased prices of food. अब अगर हम एज्यूम करें कि प्राइसेस ऑफ फूड दे हैव गॉन अप, कि अब हमारा प्राइस ऑफ फूड जो है वो $2 पर यूनिट हो गया, तो फिर क्या होगा, y इंटरसेप्ट विल रिमेन अनचेंज्ड और x इंटरसेप्ट हमारा जो है वो 80 डिवाइडेड बाय 2 के साथ 40 पे आ जाएगा। सो L3 इज आवर बजट लाइन। अब अगर हम इसको समराइज करें तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो है बजट लाइन फूड की प्राइसेस कम होने से शिफ्ट करता है आउटवर्ड ऑन दी एक्स एक्सिस ओनली, और फूड की प्राइसेस बढ़ने से शिफ्ट करता है इनवर्ड ऑन दी एक्स एक्सिस। नाउ द इफेक्ट इन चेंजेस इन इनकम एंड द प्राइसेस, दे आर गोइंग टू शिफ्ट आवर बजट लाइन। इनकम बढ़ती है, प्राइसेस हम बजट लाइन जो है वो हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, इनकम कम होती है, बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है।
एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उस एक्सिस के ऊपर आपकी बजट लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट होती है, और उसी आइटम की अगर प्राइसेस कम हो जाती हैं तो हमारी बजट लाइन उस आइटम के एक्सिस पे आउटवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट कर जाती है। अब अगर हम ये सिनेरियो देखें कि जिसमें हमारी पैरेलल चेंजेस हैं, चेंजेस दे आर टेकिंग प्लेस बोथ इन इनकम एज वेल एज इन द प्राइसेस। एक सिंपल सा सिनेरियो लेके हम शुरू करते हैं कि सपोज हमारी इनकम जो है वो डबल हो गई। अगर हमारी इनकम डबल हो गई और उसके साथ साथ प्राइस ऑफ फूड और प्राइस ऑफ क्लोथिंग वो भी डबल हो गई, तो हमारी बजट लाइन को क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल आंसर इज, सिंस द इनकम हैज डबल्ड, prices they have also been double, so a parallel increase has taken place. Therefore what will happen, there will not be any shift in our budget line. Budget line will remain constant. और अगर हम इनकम के ही शिफ्ट के साथ बजट लाइन को शिफ्ट करते हैं आउटवर्ड, तो बजट लाइन शिफ्ट तो कर गई है आउटवर्ड, बट उसका स्लोप चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हमने प्रीवियसली देखा था कि प्राइसेस ऑफ फूड के कम या ज्यादा होने से बजट लाइन सिर्फ एक्स एक्सिस पे शिफ्ट की थी, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, उस सूरत में हमारी बजट लाइन का स्लोप चेंज होगा। अब इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं और हम स्लोप्स की टर्म में बात करते हैं, और हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब बजट इनकम जो है हमारी बढ़ती है या कम होती है और हमारी बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करती है राइट या लेफ्ट, इन दोनों ही सूरतों में हमारी बजट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारी प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट चेंज होती है, सिर्फ एक गुड की प्राइस चेंज होती है, तो हमारी बजट लाइन का स्लोप जो है वो चेंज हो जाएगा। तीसरा सिनेरियो हमने देखा था कि अगर साइमल्टेनियस चेंज है इनकम में और प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स, यानी तीनों वेरिएबल्स इनकम, प्राइसेस ऑफ फूड एंड प्राइसेस ऑफ क्लोथिंग, अगर तीनों साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं बट इसमें सेम अमाउंट, डबल हो रहे हैं तो सारे डबल हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं तो सारे हाफ हो रहे हैं, तो उस सूरत में हमारी बजट लाइन विल नॉट शिफ्ट एंड द स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल रिमेन कांस्टेंट। इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं अपना बजट लाइन का पोर्शन। समरी हमारी क्या है? समरी ये है कि बजट लाइन बेसिकली डिफाइंस अ सिचुएशन इन व्हिच consumers have limited budgeted income and they have to select combination of commodities or different commodity baskets remaining within that budgeted income. What we are saying here is कि उनकी total spending should be exactly equal to their total income. अब इसी बजट लाइन जो कि एक रिसोर्सेज के ऊपर लिमिट है, which is drawn with the help of the prices of the goods as well as the income available to the consumers, हम उनको जब रिलेट करते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस पे, अगर आप रिकॉल करें हमने शुरू में यही कहा था कि कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग के 3 स्टेप्स है। फर्स्टली वी वुड लाइक टू लुक एट द प्रेफरेंसेस, then we need to look at the budget lines and then we'll combine together and we look at the consumer choices. अब हम इस कंज्यूमर चॉइस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेफरेंसेस हमने एनालाइज की इन द लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एंड बजट लाइन किया। अब हम इन सारों को इकट्ठा करने के बाद कंज्यूमर चॉइस के ऊपर आएंगे। कंज्यूमर चॉइस इज दैट द कंज्यूमर्स दे डू हैव प्रेफरेंसेस for certain goods over the other goods, but they do also face a budget constraint. So how in consumer choice we are looking at the decision which consumer make that they have to choose one commodity basket over the other commodity basket remaining within the budgeted income and the given price level. So it comes down to the point where we can say that the utility maximizing or the well-being maximizing
basket should satisfy two conditions. Number one is it should lie on the budget constraint, and number two is that consumer should prefer this basket of the commodities over the other baskets of commodities. In other words, आपका budget line और indifference curve they decide about the consumer equilibrium. आपके इंडिफरेंस कर्व एक्सप्लेन कर रहे हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को, और बजट लाइन जो है वो उसकी इनकम और कमोडिटीज की प्राइसेस को टेक केयर कर रही हैं। इसी चीज को देखने के लिए हम इस स्लाइड को देखेंगे। स्लाइड में हम अगर देखें तो व्हाट वी हैव हियर, वी आर सेइंग द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर रिफ्लेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, एंड देन वी सेड the indifference curve, the slope of the curve is marginal rate of substitution, which is given as minus change in C. We are taking the example of clothing and food again. So, we have change in C divided by change in F. That is the slope of the indifference curve. Then we also calculated the slope of the budget line, and we said the slope of the budget line is minus PF over PC. Why do we have minuses here? The reason is that our indifference curves are also sloping downward. It has a negative slope, so we have a negative sign in order to make it positive. Our budget line is also downward sloping, so we again have a negative sign to make it positive. अब दूसरी स्लाइड पे हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन is a condition where the consumer's utility is maximum or the consumer satisfaction is maximum. So, consumer definitely will be satisfied to the maximum extent when the preferences are met and consumer is also remaining with the budget constraint. इन्हीं दोनों चीज़ों को जब हम इस इक्वेशन में लिखते हैं तो हम कह रहे हैं marginal rate of substitution is equal to price of food divided by price of clothing, which means that the marginal rate of substitution is the slope of indifference curve and price of F divided by price of C is the slope of the budget line. So, it can be said that the consumer's satisfaction will be maximized where the consumer is on the indifference curve with the marginal rate of substitution equivalent to the slope of the budget line. अब इसको हम इस ग्राफ की मदद से देखते हैं। इस ग्राफ में, इस स्लाइड में व्हाट हैव वी शोन, इस ग्राफ में हमने वही अजम्पशन ली है कि हमारी इनकम इज $80, प्राइस ऑफ फूड इज $1 पर यूनिट, प्राइस ऑफ क्लोथिंग इज $2 पर यूनिट। एक्स एक्सिस पे फूड एंड वाई एक्सिस पे क्लोथिंग। टेकिंग दीज टू प्राइसेस, $2 per unit for clothing and $1 per unit for food and an income level of 80, we have drawn the budget line. The budget line is touching the number 40 on the y-axis and 80 on the x-axis. That is the budget line. Indifference curve is reflected with the utility curve U1 or the indifference curve U1. इस indifference curve के ऊपर we are trying to find out कि given this budget line and the indifference curve whether consumer is maximizing its satisfaction or not. If we try to look at point B के ऊपर what is the marginal rate of substitution? Marginal rate of substitution is, what are we doing? We have minus 10C, that is decrease in clothing in 10 and increase in food is 10, which means 10 divided by 10 marginal rate of substitution is 1, whereas the ratio of price of food to the ratio of price of clothing is 1 divided by 2. So, the marginal rate of substitution, which is 1, is not equal to the slope of the budget line, which is 1 by 2. So, at point B, consumer is not maximizing its satisfaction. अब हम एक और सिचुएशन को देखेंगे और इस सिचुएशन के देखने के लिए हम इस स्लाइड को रेफर करते हैं। अब इस स्लाइड में हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट वही है। वी हैव 40 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग and 80 units of food on
वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, इसी बजट लाइन के ऊपर हमने एक इनडिफरेंस कर्व ड्रा किया है। ये इनडिफरेंस कर्व इज U3, इज अ हायर इनडिफरेंस कर्व। अब इस इनडिफरेंस कर्व के ऊपर पॉइंट D, ऑफ कोर्स कंज्यूमर वुड लाइक टू हैव इट, बट दिस पॉइंट D इज अबव द बजट लाइन, विच मीन्स पॉइंट D के ऊपर हमने जितने यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग एंड फूड खरीदने हैं उनके लिए हमारी बजटेड इनकम नाकाफी है। So if we select point D, it can give us maximum satisfaction, but we cannot attain it because our limited budgeted income of $80 and the price of clothing of $2 and the price of food of $1, they are not allowing us to have those many units of food and clothing. So ये वो situations थी जिसमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मीनिंग व्हाट? मीनिंग के कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं कर सकता। अब हम आते हैं कि एक ऐसा सिनेरियो जिसमें के कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो सकती है। इस सिनेरियो के देखने के लिए हम इस स्लाइड को देखना चाहेंगे। हमारे पास बजट लाइन ड्रॉन विद द अजम्पशन कि आपकी इनकम इज $80, प्राइस ऑफ फूड इज $1, price of clothing is $2. Therefore, what we have seen here, we have seen the same old budget line and we have an indifference curve U2. At point A, our margin rate of substitution is 1/2 and our slope of the budget line is also 1/2. So at point A, the consumer is maximizing its benefit. So to conclude, what we have done in today's lecture is we talked about the budget line and we already have talked about the indifference curves in the previous lecture. So combining these two together, we have come up with a situation where consumer is maximizing its satisfaction, remaining within the budget constraint and trying to achieve the maximum attainable indifference curve baskets of goods. अब इस सारे कुछ के साथ हमने कंज्यूमर बिहेवियर के एक एस्पेक्ट को देखा है थ्योरेटिकली। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए चंद एक एग्जांपल्स लेंगे। इन एग्जांपल्स में हम कुछ एग्जांपल रियल लाइफ की लेंगे और उस रियल लाइफ एग्जांपल में हम कोई कॉलेज एजुकेशन या किसी प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल की एग्जांपल लेंगे और उससे ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मजीद क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमने आज तक जो किया है उसमें ये है कि पिछले लेक्चर में हमने प्रेफरेंसेस को देखा, आज के लेक्चर में हमने उन्हीं प्रेफरेंसेस को कन्वर्ट कर दिया यूटिलिटी के फॉर्म में एंड देन यूटिलिटी के साथ हम मूव किए बजट कंस्ट्रेंट की तरफ। जब हम बजट कंस्ट्रेंट की तरफ आए तो हमने कहा कि प्रेफरेंसेस तो हमेशा कंज्यूमर की एक ख्वाहिश को एक्सप्रेस करती हैं कि वो हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाए, लेकिन जो ही बजट कंस्ट्रेंट एंटर होती है पिक्चर में, जो कि एक रियल लाइफ सिचुएशन है कि कंज्यूमर ने वो गुड्स परचेज करने के लिए उनकी सर्टेन प्राइसेस भी देनी है और उसके पास कोई बजटेड इनकम भी है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ आते हैं जिसमें ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो कि प्रेफरेंसेस का रिफ्लेक्शन है, दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन एंड दैट इज द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज एट द मैक्सिमम। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, बजट लाइन को देखा और उसके साथ हमने ये देखा कि चेंजेस इन इनकम हाउ दे कैन शिफ्ट द बजट लाइन, changes in price level of the commodities how they can shift the budget line and how consumer they come up with the equilibrium scenario. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसके साथ साथ चंद एक और टॉपिक जो हैं वो कवर अप करना चाहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।